आज भारत सिर्फ सपने नहीं देख रहा है, बल्कि उन्हें डिजाइन भी कर रहा है। आज हमारे स्कूल्स और कैंपसेस सिर्फ डिग्री नहीं दे रहे हैं, बल्कि देश को बड़ी डिसरप्शंस भी दे रहे हैं। हमारे जेन ज़ी सवाल भी पूछ रहे हैं और उनके समाधान भी बना रहे हैं, और उन सभी समाधानों को राष्ट्रीय पहचान देने का हमारा मंच है इनोफैंट। यहाँ सोच से सफर शुरू होता है और उस सफर से बनता है स्टार्टअप। ये है आइडिया ऑफ इनोवेशन, भारत का आइडिया बैंक। तो आओ सिर्फ फ्यूचर की बात ना करें, बल्कि फ्यूचर बनाएं। वेलकम टू इनोफैंट रोड शो। और आज 4 अलग अलग शहरों से होते हुए इनोफैंट की रोड शो आ पहुंची है लखनऊ के एमिटी कैंपस में। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि सरकार की तरफ से स्टार्ट इन यूपी जैसे इनिशिएटिव को चलाकर यंग इनोवेटर्स को अच्छा खासा सपोर्ट दिया जा रहा है। उसी में अपना कुछ योगदान देने के लिए इनोफैंट रोड शो एमिटी आ चुका है। यहाँ हम सुनेंगे यंग इनोवेटर्स के कुछ इनोवेटिव आइडियाज और उन्हें प्रोवाइड करेंगे एक इनोफैंट का मंच। चलिए पहले चलते हैं वीसी सर के पास, उनसे जानते हैं कि किस तरह से एमिटी में इनोवेशन को सपोर्ट मिल रहा है, और फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी हमारे इनोफैंट रोड शो में। I'm glad to speak on a topic today that drives the future of every progressive nation, innovation. Innovation is not limited to metropolitan hubs. For decades, cities like Delhi, Mumbai, and Bangalore have been considered as the epicenters of entrepreneurship, but the narrative is changing. Tier 2 cities such as Lucknow, Chandigarh, Indore are developing ecosystems for entrepreneurship and innovation. Tier 2 cities offer a unique combination of aspiration and opportunity. They have good access to quality education, excellent infrastructure, government policies, and digital connectivity. Tier 2 cities also have something called students with fresh ideas and a vibrant community that can drive innovation and can finally transform their ideas into reality. Universities and higher educational institutions also play a vital role in this transformative journey. At Amity University, Lucknow, we firmly believe that innovation must serve society. Amity University have its own Amity Innovation Incubators that constantly support student entrepreneurial ideas. Amity Innovation Incubators have developed an ecosystem that supports experimentation, research, startup incubation, and industry collaborations. At Amity Innovation Incubator, we firmly believe that every idea must support society, and we motivate students to think differently and responsibly. So let's go ahead and motivate and encourage our students to think responsibly and be good innovators. At Amity University Lucknow campus, we have more than 50 plus startups, and they are in various diverse fields like agri-tech, meditech, sports, fashion, artificial intelligence, machine learning, etc. We have a lot of tie-ups with CM Yuva Udyami Yojana. We have tie-up with Samadhan, and there are various agencies from which we get supports, grants, and mentoring time to time. So we are the privileged university to have the support from Start in UP and Startup India. So in that way, we are very much privileged. We are focusing every time the students to come to the incubator, visit there, share their ideas, share their views with us so that we can help them in their mentoring, we can help them in converting their ideas into business. We are already aligned with the government mission like Startup India, Skill India, Make in India. So we are already aligned with those goals. Now, how do we start? When a student is having any idea, we ask them to pitch deck that idea, and then
If we find that the idea is noble in nature, then we try to connect them with various mentors who are having certain kind of technical skills, or if they need any kind of mentoring related to financial assistance or some legal compliances there. So we try to connect them to those mentors, and we are already supported by Amity Innovation Incubator Noida campus. So in that way, we are also very lucky to have this kind of support with us. So I'm Rajesh Joshi, co-founder of Innofint. Innofint is a platform, a stage for young innovators, ideators like you. We give you visibility, opportunity. इंडिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मार्क्स नहीं, क्रिएटिविटी भी चाहिए. सॉरी टीचर्स, मैं ये बोल रहा हूँ, बट आई थिंक ये आपको भी वही बोलना चाहिए. आई थिंक पेरेंट्स को भी वही बोलना चाहिए कि मार्क्स तो दिखा ही रहे हो, मार्क्स लाने ही हैं, तो इसके साथ कुछ आइडिया भी लाओ. आज क्या नया क्रिएट किया. सो दैट्स द आइडिया ऑफ इनोफिंट, टू गिव यंग आइडिएटर्स अ प्लेटफॉर्म. हम एलिमिनेशन, आइडिया को एलिमिनेट नहीं करते, हम आइडियाज़ को एवोल्यूशन करते हैं. हम ये नहीं पूछते वैल्यूएशन कितनी, हम ये पूछते हैं कि आपके क्रिएशन से क्या इंडिया में चेंज आएगा. सो दैट्स द मोटिवेशन टू डू इनोफिंट. और वी आर डूइंग समथिंग यूनिक, क्योंकि लखनऊ में है तो कुछ अलग कर रहे हैं. हमने ये ओपन माइक रखा है. तो जैसे मैंने पहले कहा, पहले आप, आई वांट टू सी जो भी आइडियाज़ वाले हैं इधर, चाहे आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं या आपके नोटबुक में आइडियाज़ हैं या व्हाट्सएप में, आई वांट टू आस्क यंग इनोवेटर्स, आइडिएटर्स हियर, डू समथिंग डिफरेंट. आपके तरफ से जो भी आइडिया है, आई वुड वांट टू कीप दिस माइक ओपन. प्लीज़ कम ओवर एंड टॉक अबाउट योर आइडिया. लेट्स सी, पहले आप कौन हैं? So I am Ada Rizvi, founder of Stitchies, and I'm an Innofint. So one day I had to get something stitched for Eid. मिड सेम के मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, बट ना ईद की डेट चेंज हो सकती है ना मिड सेम एग्ज़ाम्स की. सो टेलर पास, सो आई वेंट टू अ टेलर एंड वहाँ पर थोड़ा मैंने उनका दिमाग खाया, उन्होंने मेरा खाया बहुत. आई होप ही अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड. I love customizing outfits for myself, especially traditional outfits. तो वो भी एक टायरिंग प्रोसेस नहीं था मेरा जाना अच्छा टेलर ढूंढना. बट what happened before that, मार्केट जाके शॉप्स टू शॉप्स, परफेक्ट मैचिंग शेड का दुपट्टा, लेसेस एंड बटन्स एंड ऑल, सब शॉप टू शॉप के परफेक्ट चीज़ें मिल जाए. इट वॉज वेरी टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग. सो दैट्स व्हेन Stitchies was born. Stitchies, we at Stitchies, we give at-home tailoring services. Like you can book an appointment with us and we'll send people to your home to get your measurements and आपके साथ smoothly, calmly एक एक चीज़ discuss करना. neck line कैसी चाहिए, sleeve कैसा चाहिए है, किस type का fabric चाहिए, fabric you want to give, it's okay. Otherwise we can do all of this for you, get your outfit stitched and deliver it right at your doorstep. So it's been 1 year. We launched on 6 December 2024 and we've got a great response from Lucknow. Lucknow people, I can surely say they love customizing and stitching. It is a growing service built on trust and consistency. And do follow Stitchies here on Instagram. And that's it. Thank you. It was lovely to share the idea with you all. हम आइडियाज़ के लिए आए थे एंड somebody has already done a startup. So excellent, very good on you. Okay, now can we have some one? कौन है ideator? Who's the next Innofint? Hello, I am Satyam Raja and I am an Innofint and I am the founder of Aura Planners. And what is Aura? So मैं आपको Aura पे ले चलता हूँ कि what our company do. Basically मैं जयपुर में एक कॉन्सर्ट में था, तो अपना जॉब एंड ऑल करके ख़त्म करके कॉन्सर्ट अटेंड करने, तो मैंने टिकट्स बुक किए बट फ्रॉम प्लेटफॉर्म. बट मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए. देयर वर अ लॉट ऑफ हिडन चार्जेस, हीट मैप नहीं था, क्राउड नहीं मुझे पता था क्या नहीं है. तो दैट वाज अ रियलिस्टिक प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया. फिर मैं अपने शहर लखनऊ आया कि
क्या एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्या ये मेरे ही साथ है। तो जब मैंने जेनजीज, मिलेनियल्स, डिफरेंट एज को सर्वे किया या रिसर्च किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे देयर आर इवेंट प्लेटफॉर्म्स, बट वो नहीं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पा रही। तो फिर वहाँ पे हमारा बॉर्न अप होता है हमारी कंपनी का ऑरा प्लानर्स का। तो ऑरा प्लानर्स बेसिकली क्या करता है, ऑरा प्लानर्स जो है वो बेसिकली हम लोग इवेंट कंपनी नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग द AI पावर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, AI पावर्ड एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म वी आर। हम लोग जो है सारे इवेंट्स, मूवीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो दूसरा प्लेटफॉर्म कर रहा है वही कर रहा है, बट वी आर इम्प्लीमेंटिंग AI। हम AI को पूरा कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो AI का जो पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, AI इवेंट मैनेजमेंट सजेशन, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स व्हाट डू सजेशंस। तो उसने सजेस्ट करते हैं, हम भी वही करते हैं कि इवेंट सजेशन आपके मूड के हिसाब से करें। तो दैट इज़ द फर्स्ट AI इम्प्लीमेंटेशन जो हमने किया। सेकेंड जो हमारा है AI हीट मैप, क्राउड हीट मैप। हमें ये नहीं पता चलता है कि इस कॉन्सर्ट में कितना क्राउड आया है, कितना क्या आया है, तो वो नहीं पता चलता है। तो दैट इज़ द सेकेंड AI इम्प्लीमेंटेशन आवर ऑरा प्लानर्स आर डूइंग। एंड द थर्ड वन इज़ जो हमारा है वो AI बजट फ्रेंडली। AI अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2000 रुपये, 2000 में मुझे मूवीज़ भी देखना है, खाना भी है, सारा कुछ करना है, बट वो सजेस्ट नहीं कर रहा, कोई प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं कर रहा है, तो वो हमारा ऑरा प्लानर्स करना चाह रहा है और हम वहीं पे वर्कआउट कर रहे हैं। दैट इज़ द आइडिएशन विच वी हैव फाउंड। दैट इज़ द 3 AI इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग उसे कर रहे हैं। और इसी के साथ जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया एंड वी आर इन अ प्रोसेस, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये सारा कुछ प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने फाउंड आउट किया, सर्वे किया, रिसर्च किया, एंड वी आर मूविंग फ्रॉम द Tier 2, Tier 3, 4 सिटीज़। हम लोग का मेन फोकस है Tier 2, Tier 3, 4 सिटीज़, एंड आफ्टर सेवरल मंथ्स हम लोग उसको फिर मूव ऑन करेंगे। तो दैट इज़ हमारा छोटा सा ऑरा प्लानर्स है और इसी को हम अपने को ले जाना आगे चाहते हैं। थैंक यू। Fantastic, and I believe that next unicorn or next ideas or next innovation जो भारत में, इंडिया में आएगा, वो actually Tier 2, Tier 3 cities से आएगा. That's why we are proud and happy to be in Lucknow, and I want to see more ideators, innovators to come. Oh, there's a lady there, please. Very good afternoon, everyone present here. I am Hunar, founder of Raisin Aza, a brand specializing in raisin jewelry and keepsakes, as well as anti-tarnish jewelry for both men and women. I am an innocent. Let me ask you a simple question. Do you still have the rose which was gifted to you the first time by anyone? Or your parents still have the varmalas of the wedding? Or they simply got dried and they faded away? Well, I faced a similar problem, and that's when I decided that something should be done about it, because we can't just let our memories fade away like that. So I founded and I started Raisin Aza, which is a company that preserves and stores your flowers and your memories into something timeless. I take flowers, varmalas, or any other notes or anything like that, and I preserve it in resin into something which is timeless and lasts forever, like a keepsake or jewelry. Raisin Aza is not just limited to these resin keepsakes. I also faced a problem when I was gifted a piece of jewelry, and in a month it faded away. And I thought to myself, if this is not a piece of jewelry, it is a sentiment, it is an emotion for me. It is something that should last more, and I should wear it every day. That's when I came up with this idea of introducing anti-tarnish, waterproof, sweat-proof jewelry for both men and women, because fashion and jewelry isn't limited to a gender. So I also introduced anti-tarnish jewelry for both men and women. That's a great idea. With roses, you can have subscriptions given to you. Very good. Any new ideas? Oh, yes. Good afternoon, everyone. I am Kashish Gupta, founder of Malibu F&B. I am an innovator.
बेसिकली इफ़ यू सॉ अ स्कूल और अ कॉलेज, कितना टाइम ऐसा होता है कि स्कूल में बेसिकली 15 मिनट्स का हमें लंच ब्रेक मिलता है एंड वी डोंट हैव टाइम टू रश टू कैफेटेरिया, और फिर वहाँ जाते हैं, देन वी सॉ ह्यूज लाइन एंड वी आर लाइक हटाओ यार, ऐसा करते हैं जस्ट लंच कर लेते हैं, वी डोंट हैव टू नीड लाइक अ चिप्स और समथिंग. For that reason, here the Malibu F&B comes. We are building vending machines with AI automation, and we are establishing in all whole Lucknow and Surat also. After listening to that pitch, I think everyone will get very hungry soon. तो अभी 5-10 मिनट के लिए खुला है, जल्दी जल्दी आओ और किसके पास आइडिया है और जल्दी बताओ. Hello everyone, my name is Shehbaz Sheikh and I am at Innofend. तो my startup idea is कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड है, तो उसका नाम है ऑटोप्लास. सो बेसिकली ऑटोप्लास है क्या? ऑटोप्लास इज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप. सो लेट मी टेल यू हाउ दिस आइडिया स्टार्टेड. सो इंडिया में अभी कंस्ट्रक्शन बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और कमर्शियल स्पेसेस बन रहे हैं. और मेरे फादर भी वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो मैंने उनके साइट्स पे भी मैं जाता था. तो जब साइट्स को मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने एक चीज़ कॉमन नोटिस करी उन सभी में, जो कि था प्लास्टरिंग. तो प्लास्टरिंग वहाँ पे जो मैंने देखा कि वो मैनुअली किया जाता था. अभी भी वो बहुत से जगह पे, ज़्यादातर मेजर जगह पे वो मैनुअली प्लास्टरिंग होती है. तो मैनुअल प्लास्टरिंग में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें प्रॉब्लम है. मैंने प्रॉब्लम को नोटिस किया कि वो बहुत लेबर इंटेंसिव होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है और उसकी जो फिनिशिंग है कंसिस्टेंसी नहीं आती है. जैसे आज कोई प्लास्टर करके गया तो फिर वो कल करेगा तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी बराबर नहीं होती है. तो फिर और जो कि वो उसको प्लास्टर करने के लिए बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत भी होती है. और इंडिया में अभी स्किल्ड लेबर्स की बहुत शॉर्टेज चल रही है और उसके बीच जो कॉस्ट होता है, डेली वेजेस होते हैं, वो भी बढ़ रहे हैं और मटेरियल, उसकी वजह से मटेरियल लॉस भी बहुत होता है. तो हियर कम्स ऑटोप्लास. ऑटोप्लास क्या करता है? ऑटोप्लास में 2 मशीनें हम बनाते हैं. तो पहला है ऑटोमेटिक प्लास्टर स्प्रेयर गन, जो कि आज अफोर्डेबल है. हमारा जो सेगमेंट है वो अफोर्डेबल है, जो कि मिड लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स को टारगेट करता है. तो जो पहला है वो स्प्रेयर गन, वो 4 से 5 हज़ार के बीच में आ जाता है. और जो दूसरा हमारे पास जो मशीन है वो ऑटोमेटिक वो स्मूथर है, जो हम प्लास्टर करेंगे उसको स्मूथर करने के लिए, वो भी अराउंड 6 से 7 हज़ार के बीच में आ जाता है. तो ये चीज़ मैंने देखी और मैंने इस पे मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोटोटाइप में, ये आइडिया डेवलपमेंट में भी अभी है. इसको लेके मैं कई सारे पर्सनल वो कॉन्ट्रैक्टर से पर्सनली मैं मिला भी हूँ और उनको अपना प्रोटोटाइप का आइडिया ये दिखाया भी है, कॉन्सेप्ट बताया है. तो उनको ये काफ़ी अच्छा लगा है और मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स भी वहाँ से मिले हैं. तो वो बोले अगर रीज़नेबल प्राइस में ये चीज़ हमें अवेलेबल होती है तो हम इसे डेफिनेटली इस पर स्विच करना चाहेंगे. तो इसका मतलब ये रियल लाइफ वैलिडेशन भी मेरे पास है, ये थ्योरेटिकल नहीं है. तो इसी को मैं आगे, और डेवलपमेंट में भी अभी है, इसको मैं आगे करूँगा. तो यही है मेरा. थैंक यू. Very good. Manufacturing भी है and I think India is looking to be the manufacturing hub. So very good idea. Okay, last. Hi everybody, this is Ayush. I'm an Innofend. I'm the founder and CEO of Kio AI. So let me tell you, I started in my 11th standard. Then at that time I was just freelancing things और मैं कुछ करता रहता था. बट फिर मैंने ट्राई करा इन माई फर्स्ट ईयर, मैंने ट्राई करा कुछ प्रोडक्ट्स बनाने का, बट आई मीन फेल्ड देयर समहाउ. बट देन आई स्टार्टेड अ सर्विस बेस्ड कंपनी विच इज़ एन IT बेस्ड सर्विस कंपनी एंड विच ऑल्सो प्रोवाइड सम डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस. तो एक चीज़ मैंने हर बार देखी है कि हर IT कंपनी का जो ओनर होता है, मैं जब उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे एक चीज़ पता चलती है कि वो ये कहते हैं कि वी हायर डेवलपर्स, वी ट्रेन देम फॉर 6 months, लाइक एंड दैट पीरियड इज़ नॉट इवन यूजफुल फॉर अस. नाउ हियर Kio comes into the frame. What Kio does is it reduces the cost of training. How? It has a lot of agents which are mapped to train those people. Basically क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं Kio के ऊपर, लोग उसको जा करके ज्वाइन करते हैं, राइट. कंपनी के अंदर से कंपनी ही ज्वाइन करवाती है कि लाइक हाँ आप नए हायर्स हो, आप यहाँ पर आके प्रोजेक्ट को ज्वाइन करोगे और इस तरीके से वो प्रोजेक्ट काम कर रहा होगा. तो क्या होता है कि Kio के अंदर एक AI प्रोजेक्ट मैनेजर है इटसेल्फ. तो वो क्या करता है कि वो हर एक चीज़ को ऑटोमेट कर देता है विद डिफरेंट AI मॉडल्स. फिर टास्क जब कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग PR डालते हैं. PR पुल रिक्वेस्ट होती है,
कोडिंग के डोमेन में पुल रिक्वेस्ट क्या होती है कि आप एक कोड लिखते हो और आप उसकी PR बनाते हो टू द मेन कोड कि ये कोड है मेरा, इसको मर्ज कर दीजिए। तो दिस इज समथिंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, वो देखता है वहाँ पर आपका कोड और उस चीज़ों को फिर इंटीग्रेट करता है जो फाइनल कोड है प्रोडक्शन लेवल वाला। बट कोई भी, मैं बताता हूँ, कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में मेरे, बट अभी तक ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जो कि प्रॉपर कोड रिव्यूज़ कर रहा हो PRs का। बट वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस सक्सेसफुली। अब यहाँ पर सेव कहाँ पे होती है कॉस्ट, में थोड़ा सा बताता हूँ कि जो AI प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स उस टीम के ऊपर लगे हुए हैं जो नई हायर हुई है, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है। फिर जो सीनियर इंजीनियर्स हैं वो बैठ करके उनको सिखा रहे होते हैं, ABCD ऐसे लिखी जाती है कोड बेसिकली। तो इस तरीके से बहुत से रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं, 6 months तक की कई लोगों की सैलरीज वेस्ट हो रही होती हैं, आप कह सकते हो, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट Kio सॉल्व्स विद मल्टीपल एजेंट्स। I'm from Jaipur, so I'll just say very good Kio. So I'd like to invite ideas, innovation. Obviously, Innofint is giving a platform where you get visibility and opportunity. But in educational campuses, there is an incubator जो आपका hand hold करते हैं, जो आपको mentorship करते हैं, and they have some amazing people working in the incubator. I'd like to call my colleague and friend Sanyam. Sanyam is from MET Innovation Incubator, your own incubator in your own campus across India, and they have done a phenomenal job. I'd like to. हमारा पर्पस यहाँ पे आने का ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं इनोफिंट का प्रोग्राम क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं हम डे एंड नाइट हम सुनते हैं, हमारे मन में भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बट हम बताते नहीं हैं किसी को। हम ये सोचते हैं कि अरे इसका क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं। इनोफिंट एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अब आप बोल पाएँ, आप बता पाएँ कि आप क्या कर सकते हैं। आपने 5-6 इनोवेटर को यहाँ पे सुना होगा, आप ही के बीच के लोग हैं, आप ही के बीच के स्टूडेंट्स हैं जो आकर ये बोल रहे थे कि उन्होंने क्या किया। गट्स चाहिए गाइस, तो पहले कहना है गेट अ क्लैप फॉर दोज पीपल जिन्होंने यहाँ पे आके गट्स किया बोलने का। तो ये आप भी हो सकते हैं। वी वांट इनोफिंट के थ्रू, हम चाहते हैं कि जो 8 साल से बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं और 21 ईयर्स तक के बच्चे, जो कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, BBA, MBA तो आई थिंक थोड़ा सा एज ज़्यादा हो जाता है, BBA, एनी स्टूडेंट हु आर अंडरग्रेड, आपके छोटे भाई बहन होंगे जो स्कूल में भी होंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम के थ्रू इसमें आए। हम इसको नेशनल लेवल पे इस प्रोग्राम को लेके जाना चाहते हैं। टॉप गन एंटरटेनमेंट, टाइस मीडिया और MET इनोवेशन इंक्यूबेटर इसको को क्रिएट कर रहे हैं। वी वांट कि आप लोग अप्लाई करें। क्या पता आपका जो आइडिया, जो आप मन में सोचते हैं, क्या पता वो एक दिन नेशनल लेवल पर उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन दे पाए। तो ये हमारा पर्पस है। आपकी यूनिवर्सिटी है एंड वी वांट दिस टू बी अ वाइडर प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द रोड शो ऑफ इनोफिंट एंड वी आर हैप्पी इन द कमिंग टू द लखनऊ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपने सुना होगा, मगर ये बात अब पुरानी हो गई है। अब आविष्कार ही मूलभूत आवश्यकता है। हाय, माय नेम इज ओजस्वी बबर और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ MET इनोवेशन इंक्यूबेटर को। Hi, I'm Rajesh Joshi, co-creator of Innofint. नमस्कार, मैं हूँ मनोज सिंह। I am founder and editor of TIES. आज यहाँ MET इनोवेशन इंक्यूबेटर में इनोफिंट का पहला रोड शो हो रहा है। Innofint is a innovation entertainment platform where we give young minds and the youth of India to come and talk about their ideas. हम ये जानते हैं और हम ये मानते हैं, यही इनोवेटिव आइडियाज़, यही नवाचार भारत के विजन 2047 को मजबूत करेगा, वहाँ तक पहुँचने में हमारे लिए मददगार साबित होगा।